Moving further, I would like to invite a Dean, Faculty of Homeopathy, Saurashtra University, and the Principal of Sri HNS HMC, Dr. Kalpit Sanghvi sir. Please, please welcome on the stage Dr. Kalpit Sanghvi sir with a huge round of applause. Respected Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Utpal Joshi sir, respected Chairman and National Commission for Homeopathy Dr. Tarkeshwar Jain sir, respected President Homeopathy Education Board National Commission for Homeopathy Dr. Rajat Chattopadhyay sir, respected our past chairman and mentor and guide throughout these years Dr. Anil Khurana sir, respected Director General Central Council for Research in Homeopathy Dr. Subhash Kaushik sir, respected the national and international, though qualified in allopathic stream, but in a passion and love for homeopathy, Dr. Adil Chimthanwala sir, respected Dr. Girish Gupta sir, from Lucknow all the way, he come for the first time I think in Rajkot. Yeah. Internationally acclaimed and who has worked extensively in the cancer, and Dr. Farooq Master sir. And one of my motivator, my enthusiastic, from whom I learned so many things, is Dr. Manoj Patel sir. He's from Bombay. I welcome you, sir. This is for the first time a small effort has been done to bring two ends together. One who is the policymakers, creators, and the authorities on the stage and deputies, and the other end, the successful practitioners who has been practicing things. So bridging the gap between education and practice, this is one of a simple effort which we tried to make it happen on today over here, in the august presence of the practitioners, faculties, and the students. I would say, I was just reading out a story. मैं एक स्टोरी पढ़ी थी मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में. And once upon a time, on the light of street light, Mullah Nasruddin was finding a key. वो एक चाबी शोध रहा था. उसका नेबर आया, उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो कहा मैं फाइंडिंग ए की ओवर हियर. ही ऑल्सो हेल्प्ड हिम. उसने भी वहाँ मदद चालू की, ढूंढने लगा, कहीं नहीं मिली. काफ़ी बार ओपन हीज नीज एंड एल्बो, ही वाज जस्ट सर्चिंग इट आउट. काफ़ी देर के बाद उसने पूछा कि किसकी चाबी ढूंढ रहे हो, तो बोला कि अपने घर की चाबी ढूंढ रहा. उसको नहीं मालूम था कि उसकी चाबी ढूंढ रहा. फिर बोला आपको याद है कहाँ घूम गई थी, तो मुल्ला नसरुद्दीन शोड इट टुवर्ड द डार्क एरिया कि वहां घूम गई थी. तो क्या आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, तो कि बिकॉज यहाँ पे लाइट है. दिस इज वॉट इज समवॉट इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सो मेनी टाइम्स. कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे हमारा सर्च एरिया है. ज्योति मैडम प्लीज. What I understand out of this whole exercise of transforming education, what our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji envisaged after almost 70 years of freedom, he said that there is a transformation is needed. In 1947 आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद जो काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, वो हम अभी कर रहे हैं. In the era of British Empire, in the era of our education system has become a slavery of the things. That's why the new education policy came up, NEP 2020. The whole fundamental idea, मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर आप क्लासरूम टीचिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं क्या है, एंड राइट नाउ ऑथोरिटीज आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं हम लोग. So they are creating these exercise since last almost 2021, 22, 23, 22 से CBDC आया हमारा, competency based dynamic curriculum आया. There were a lot of resistance to it कि अभी इतना कैसे करेंगे हम लोग. Change is always painful and inevitable. It is always painful and inevitable. But it also produces a wonderful results. Unless and until we adopt to change, we decay and we perish.
So NCH time to time and CCRH also time to time conduct such training programs and activities across India, pan India. फैकल्टीज को बुलाते हैं 1-2 दिन के लिए, ट्रेन करते हैं, प्रिंसिपल्स को ओरिएंट करते हैं, सबको बुलाते हैं, मेहनत करते हैं कि सब ये ट्रांसफर करो. तो उसमें मैंने थोड़ा एक शिफ्ट किया. आई रिक्वेस्टेड ऑनरेबल जैन सर, खुराना सर कि सर ऐसा करें कि आप तो करते ही हो लेकिन हम भी हमारी तरफ से कुछ करें. एंड हम आपको सामने बिठा दें, यू जस्ट सी, यू जस्ट एनकरेज, or whatever vision you are seeing, you share it with directly to the students, faculties and the practitioners. What future we are going to see, कहाँ पे कौन सी कुंजी ढूंढनी है, कौन सी कीज हमको चाहिए, ये ही actually that's in era of AI it becomes a difficult thing. So as our honorable vice chancellor is also, he came out recently, हम लोगों ने 2 साल में काफी करे काम किए, and he is always ready. I certainly apologize, sir, for a 15-minute delay in the program. But this is what we intend to, कि हमको time discipline, मैंने बोला था, कल भी बोला था faculty development में, कि CBDC का essence क्या, it's not only knowledge. Knowledge तो ही है. Knowledge के साथ attitude भी important है. And skill is also important. तो ये दोनों अगर हम लोग कैसे blend करें, एंड आज के दिन में ये सेशन ऐसा नहीं है कि लाइक का सेमिनार कि एक स्पीकर आया, उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया, फिर दूसरे आया, दूसरे ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, फिर वो बैठे गए. आज के पूरा दिन ये सारे स्पीकर, सारे डिग्निटरीज को हम लोग आपके सामने रखेंगे. हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल, ऐसा सोच, एक ऐसा विचार हम लोग यहाँ पे लाइव करें, साझा करें, ताकि सबको आपके मन में भी जो क्वेश्चंस आए, आपके मन में भी जो क्वेरीज आए, आप पुटअप करिए. सी, हम सब लोग एक ही चीज से जुड़े हैं, वो है होम्योपैथी. और हमारा फ्यूचर, हमारा तो आज प्रेजेंट है, कल फ्यूचर आप हो. और आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो, ये सब सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस है चल रही है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एंड दी इंस्टीट्यूट लेवल पे. तो और उसमें भी आई यूज टू मीट ऑथोरिटीज एज वेल एज द प्रैक्टिशनर्स, एज वेल एज सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर्स. यूजुअली बच्चों के माइंड में क्या होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं वो टीचिंग में नहीं होते, टीचिंग में होते, प्रैक्टिस में नहीं होता. दैट इज द बिगेस्ट, अगर वो ऐसा है तो इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. हाउ अ स्टूडेंट कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, हाउ स्टूडेंट कैन गेट अ कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट. मैं कैसे कॉन्फिडेंट करूं? आई रियली अप्रिशिएट. मैं कल पूछ रहा था जैन सर को कि सर आप तो इतने बिजी है, यू आर लुकिंग आफ्टर सो मेनी थिंग इन द कमीशन, आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं? तो कि हाँ, मैं सैटरडे संडे 100% प्रैक्टिस करता हूँ और इसीलिए मैं जाता हूँ. पेशेंट देखना हमारे हर एक लोगों का एक पैशन होना चाहिए. मैं खुराना सर से भी कभी पूछता हूँ, कोविड के टाइम पे मैंने पूछा था, हर बार उन्होंने टोटलिटी पे काम किया, उन्होंने मेडिसिन पे काम किया. ऐसा नहीं है कि यू आर इन अ सर्टेन पोजीशन एंड यू डोंट बिकम अ डॉक्टर. डॉक्टर मीट नहीं जाते हम लोग, और ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है. सो अगर ये इतने बिजी लोग हो के भी इतना प्रैक्टिस करके, जैसे सीसीआरएच काफी सारा रिसर्च वर्क कर रहा है, आपको किसी को मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि सीसीआरएच ने कौन से डिजीजेस पर कितना काम किया है? यस्टरडे खुराना सर ने राइटली सेड कि पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोविड आया या कोई महामारी आई या कोई ऐसा डिजीज आया, तो होम्योपैथी क्या करेगा, इसमें क्या ऑफर करेगा? तो किसको पूछेगा? सीसीआरएच को पूछेगा, कमीशन को पूछेगा, पार्लियामेंट में कोई आया? क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल फ्रेटर्निटी, they are representation from us. And if we connect whole things together and we empower the body like NCH and CCRH, probably the homeopathy will be strengthening into the national mainstream of healthcare systems. This is what is intended, right? हम लोग कंप्लेंट बहुत कर चुके हैं कि होम्योपैथी को उतना शेयर नहीं मिलता है. होम्योपैथी is not that much coming into the forefront. Why? Whether have we created that impact कि government has to come and ask us what you can offer to the society, how you can do it in public health programs, what are your contributions? Have we looked at it with a larger perspective? अगर वो आ गया ना, आपको किसी से कुछ मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सबका आदमी हूं, लेकिन द फंडामेंटल कंसेप्ट, मेरा एक सेशन था नॉन मेडिकल स्किल फॉर सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस.
वो नॉन मेडिकल स्किल्स क्या है? सबको पैसा कमाना है, सबको ग्रोथ करनी है, सबको पोजीशन चाहिए, सबको पावर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एवरीबडी वांट्स इट, और सबको कंट्रीब्यूट भी करना है। उसके लिए 3C है। यू हैव टू क्रिएट समथिंग, you have to connect that, and you have to contribute that. Then only creation, connection और contribution से आपको आपका जो भी 3Ps मिलता है, position, power, पैसा, सब कुछ मिलता है। Just you have to refrain from the smaller benefits against which the larger interest or purpose of life को compromise नहीं करे। That is the basic idea. And आज के दिन में मैंने सेशन भी बहुत सोचा था। सबसे पहला सेशन हमने जैन सर का रखा था कि आप लाइक एंकर हो, CCH अरे NCH है जो, वो एंकर है। दे फ्रेम द पॉलिसीज, दे क्रिएट द थिंग्स कि हमारा फ्यूचर होम्योपैथी में ये है, और ये क्या है, इसमें प्रैक्टिस क्या है, पॉलिसीज क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि पूरे इंडिया में, इंडिया वाइड। एंड दिस टाइम यस्टरडे ओनली वी रिसीव्ड ए मेल फ्रॉम प्रेसिडेंट HEB NCH कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, सेमिनार करते हैं, एक दिन करते हैं, मजा करते हैं, भूल जाते हैं फिर। तो ऐसी कैसी एक्टिविटी करें कि ताकि सोसाइटी में भी हमारा इम्पैक्ट हो जाए। तो पूरा 8 डेज का, 7 डेज 8 डेज का उन्होंने प्लान दिया है कि आप रैली करो, आप कंपटीशन करो, क्विज करो, उसका गाइडलाइन आया है, सब कॉलेजेस को भी आ जाएगा। तो एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटी बिकॉज दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ फ्यूचर इम्पैक्ट। सो follow these things. So first session of Tarkeshwar Jain sir will be creating the policy, कैसे होम्यो विजन क्या है 2030 का, वो हम लोग सुनेंगे, सर शेयर करेंगे। उसके बाद एजुकेशन में होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड क्या लेके आता है, उसमें मैंने स्पेशली बोला था कि इट शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटिव। सर कुछ ऐसा करिएगा जिसमें हमको प्रैक्टिशनर को क्या है, पेशेंट देखना होता है, केसेस देखना होता है, मेडिसिन देखनी होती है। तो रजत सर हैज ब्रॉट सम ऑफ द ब्यूटीफुल केसेस। पेशेंट्स, हम लोग पेशेंट्स के पीछे भागते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस में केसेस के पीछे भागते हैं सिर्फ आर्ट की वजह से। पहले ये पछि बाद में ये, ऐसा नहीं। देयर शुड टू बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रैक्टिस। तो स्टैंडर्डाइजेशन के साथ होम्योपैथी में कैसे काम किया जा सकता है और पॉलिसी को कैसे कनेक्ट किया जाता है। सो क्लासरूम टू क्लिनिक, ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से रजत सर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे अपने सेशन में। उसके बाद जिसका काम है नया संशोधन करना, इनोवेट करना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी इज मैंडेटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि कितना यस्टरडे जो 4 हमारे साइंटिस्ट आए थे CCRS से, उन्होंने इतना परफेक्ट प्रेजेंटेशन सब दिया था। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास कैंसर के केसेस है तो मैं सारे कैंसर केसेस ठीक कर दूंगा। We cannot claim that, it's unscientific. तो अगर you create a database कि I have created 25 cases या 100 cases, उसमें से डबल ब्लाइंड किया, 50 को प्लेसिबो दिया, 50 को होम्योपैथी दिया, क्या इफेक्ट है? तो रिसर्च माइंडसेट शुड बी देयर सिंस द फर्स्ट ईयर ऑफ BHMS, नॉट इन ओनली इन द PG। अभी तो PG में फोकस है, लेकिन NCH ने एक मैंडेट कर दिया कि रिसर्च डिपार्टमेंट कर लो कॉलेज में। अनफॉर्चुनेट पार्ट है सर, मैं पार्ट हूँ। खुराना सर कल पूछे थे कि हाउ मेनी ऑफ यू, फैकल्टीज को पूछे थे, हाउ मेनी ऑफ यू रेड द रिसर्च पेरा और रिसर्च मैंडेट इन दी हमारा MSR या MSc में क्या दिया हुआ है फैकल्टीज को। एन अनफॉर्चुनेट पार्ट दैट ओनली 1 person he has raised the ways, right? So that we have to accept that. We must go through what the policy creators are saying and sharing what are their expectations from us, and we should follow that. At least देखे, क्वेश्चन करे। इट इज नॉट लाइक फाइंडिंग द आंसर्स, इट इज फाइंडिंग द राइट क्वेश्चंस। सही क्वेश्चंस अगर नहीं आया तो आपका राइट वो डायमेंशन ही नहीं आएगा। GPS में जैसे लास्ट डेस्टिनेशन पहले डालते हैं ना, ऐसे नहीं डालते कि मुझे अभी यहाँ से दिल्ली जाना है तो पहले मैं लिमड़ी डालूं, फिर अहमदाबाद डालूं, फिर उदयपुर डालूं और फिर दिल्ली डालूं। पहले दिल्ली डालेंगे तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, अभी का सोच लो, आज का देख लो, कल की कल जाना है। फोकस स्पान मैंने बोला, मनोज सर कल पूछ रहे थे कि 2 दिन एक ही स्पीकर, 2 स्पीकर। मैंने बोला कि अभी का जो अटेंशन स्पान है ऑफ अ प्रेजेंट जनरेशन, देयर इज अ रिसर्च कि वो एवरेज इंटरनेट सर्फर की लाइफ क्या है, 6 सेकंड। रील में फास्ट चले जाते, कोई लंबा देखता नहीं, सुनता नहीं है। सो द थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट।
our minds are also moving so fast and we are unable to focus, and the biggest challenge this generation is having a focus issue. So उसके साथ हम लोग कैसे करें, एआई के साथ हम लोग कैसे कोप अप करें, जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में. नाउ नो मोर ए मेमोरी बेस्ड एजुकेशन. अभी भी बच्चों में क्या है, सर इतना याद रखना, परीक्षा में लिखना. मैं तो पहले से बोलता हूं कि जितना जो ज्यादा याद रखे और ज्यादा परीक्षा में उल्टी करे उसको ज्यादा मार्क. ये सिस्टम गया अभी. नाउ देयर इज नो सच थिंग्स इन द न्यूअर करिकुलम ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट्स एंड कमिंग आउट टू. वो ज्यादा बोलेंगे सर, लेकिन दिस इज व्हाट द बेसिक्स आइडिया ऑफ इट. अलोंग विद देम फर्स्ट जो पॉलिसी आ गई उसके बाद आएंगे ये 4 स्टॉलवर्ड्स. दे हैव क्रिएटेड वंडर्स इन देयर प्रैक्टिस. दे आर गोइंग टू प्रेजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस विथ द माइंडसेट कि कौन से माइंडसेट के कौन पेशेंट को क्या देखा, कैसे प्रिस्क्राइब किया, उसमें कैसे वर्क करना है. सो दे आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू सर, you also have some, और it's not like कि कंसेंसस पर नहीं आना है, हमको एक कुछ सोच लगानी है. आपको भी पॉलिसी में या क्रिएशन में सर से कुछ कंट्रीब्यूट करना है, सर से कुछ पूछना है, तो ऑन द ओपन डायस एंड ओपन प्लेटफॉर्म हम लोग इनफॉर्मल वे में तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन दिस कुड बी हम लोग ऐसा डेलिब्रेशन कर ले कि जिसमें एक शाम को एक आउटपुट निकाल ले. वो आउटपुट कैन बी ए डॉक्यूमेंट फॉर फर्दर रोड मैप. सो अगर आपसे भी जैन सर, ब्रजत सर या कौशिक सर से एक्सपेक्टेशन है कि आपको भी जो गैप है वो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं. तो पूरा दिन हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ पैनल डिस्कशन जैसा, क्वेश्चन आंसर जैसा, इंटरेक्शन जैसा एक डायलॉग क्रिएट करें होल डे, along with the presence of all the senior faculties, principals and the students. So this is what my welcome note to it. Concept क्रिएशन ये था. मैं बहुत सोच रहा था कि क्या कर, ऐसा मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकूं. एज ए कल्पित संघवी इज नो मोर. सो मैं बोला कि देयर इज अ गैप एंड लेट अस फिल दैट गैप. सबको मिला कि लेट देम वर्क, दैट इज एन एनर्जी. ये पूरा इवेंट मैंने सर नहीं देखा कुछ, ये पूरा टीम उनको कंसेप्ट दिया, दे हैव क्रिएटेड दिस. ऑल द पिट्स एंड फॉल्स के साथ भी दे हैव क्रिएटेड द वंडर्स. सो दिस इज व्हाट द आउटकम इज. I especially thank Dr. Pinakin Trivedi sir for remaining present and blessing us on this event. मैंने जब भी बोला वो ही इज ऑलवेज देयर कि कल्पित क्या करना है. लास्ट टाइम भी हमने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बोला था तो जैन सर वो आ गए थे. तो हम कभी भी उनको याद करते हैं, किसी भी को भी बोलते हैं सर कि ये हमको करना है काम, हमारा पॉजिटिव इंटेंट ये है, एंड इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू दे आर ऑलवेज देयर टू स्टूड बाय अस. सो आई पर्सनली थैंक ईच एंड एवरी प्रिंसिपल्स, ईच एंड एवरी कॉलेजेस who have participated, faculties, सब साथ मिलके एक कॉमन कंसेंसस, एक कॉमन एनर्जी क्रिएट करें तो पूरा दिन फ्रूटफुल हो जाए. मैं चाहता हूं कि आज का दिन मैक्सिमम आउटपुट के साथ निकले एंड वी कैन क्रिएट दैट रिपल. यहां से उठा हुआ रिपल पूरे भारत में फैले, सब लोग एक साथ मिलके चले, आगे बढ़े और होम्योपैथी को आगे बढ़ाए और ह्यूमैनिटी को होम्योपैथी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे. थैंक यू वेरी मच सर.